Hey everyone, welcome to Coding with Ishan in part 3 in the continuation of Java series. Here in with the part 3 we are learning about non-primitive data types in Java, and in previous part we have learned about primitive data types. So without wasting any time, let's begin. So I have created the dedicated notes this is my personal notes and I will provide the notes in the form of blocks on the hash note. So let's begin without wasting any time. So here I have a non-primitive data types in depth. So reference data type and non-primitive data types are both the same thing. So basically in Java, there are mainly four types of reference data type. So first one is class, second is string, third is interface, fourth is array, right? So each one of we explore in depth in more when we get to more to the video. So, what is reference? Like, let's understand with an example of a class. Let's create a class. So, I have provided this code snippet, and I explain also the code snippet in the VS Code also. So here I explain the give a brief idea. This is a employee class. In that we have a data member. Like ये हमारा data member है. So each employee have any unique attributes which is called employee ID. And each class have a getters and setter methods for setting these values and getting these values on the of a particular attribute. So like this, these getter setter we literally study more about that in the method videos when I was creating the feature. So like that. तो ये गेट करने के लिए होता है बेसिकली हम एट्रीब्यूट के लिए ये सेट कर रहे हैं हम इसमें जैसे कीवर्ड के थ्रू से नाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ये इंपॉर्टेंट है हमने एक दूसरी लाइक स्टूडेंट क्लास वी आर क्रिएटिंग and that we have a particular public static void main method and that we are creating the class object like employee. This is the reference variable. To say that we can say that it's a reference. This is reference variable, right? So with the help of new keyword, we are creating the object. So this is I've coded. You get this. So 1 minute. Yeah. So this is employee class and having a data member employee ID. These are the getters and the setters. Previously I've explained like that. For getting the value of particular employee ID, we are using getters. For setting the value, we are using setter with the help of this keyword. So why we use later we more explore when we study about OOP principle. When I will giving the exact brief idea why they are using encapsulation like that, right? So we have a other class public class student in that we have a public static void main method. Here we are creating the object, like creating the object of employee. Like this is a how we create the object. Like whatever you have to whatever the class of the object we have to create. Like I have to create the object of the employee class. So like that name, that is basically a reference variable in which we are storing the reference of an object. Like this is the new keyword by which we allocating the memory in a heap, right? So this is the way to create the object in the class. Like you get it through this. So this is the like here. This is storing. Let me comment this. If it's not give error, like this is what is this? This is reference variable holding the object reference, holding the object reference or pointing to the object. I can say that pointing to the object, right? So when we move to the modes and nodes, so we get the more idea about that. My bad. So new keyword, like here give the points are in the nodes. With the help of new keywords, allocates a memory block of object and the variables names hold a reference to the actual memory. So like I have tell you like this is the reference variable or holding the reference of a particular object. So like in earlier videos, I have tell you like the variable are stored in stack. Like variables are stored in stack and like object things are stored in like heap section. Like I have created a dedicated video on the memory section, how Java memory section works. So you can watch out that in JVM what. In the next part, we have a in point in Java. Everything is passed by value. So the with the help of reference variable, we are
एक्चुअली अचीविंग द फंक्शनैलिटी ऑफ पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। तो हम ये बेसिकली पॉइंट का क्रक्स ये है मतलब सार ये है कि हम पास बाय वैल्यू से हम अपने जावा में जो रेफरेंस वेरिएबल पास कर रहे हैं, जहाँ रेफरेंस वेरिएबल का इतना यूज होता है जावा में, तो हम पॉइंटर जैसी फंक्शनैलिटी अचीव कर रहे हैं, जिसमें मेमोरी एलोकेट डीएलोकेट हो रही है। पॉइंटर सी प्लस में मेमोरी एलोकेट डीएलोकेट खुद से करनी पड़ती है, और वो पॉइंटर्स के अचीव के हम थ्रू करते हैं, इतना मुझे आइडिया है। ठीक है। तो नेक्स्ट अबाउट वी आर लाइक नेक्स्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है हमारा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें मैं एक डेडिकेटेड फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगा इन डेप्थ, उसमें थोड़े इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर दूंगा मैं, जो कि मेरे से पूछे गए थे ड्यूरिंग जावा डेवलपर इंटरव्यू। ठीक है। तो स्ट्रिंग एज हमारे यहाँ पे डेटा टाइप भी और एज क्लास भी है। ठीक है। तो स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल इन जावा। लाइक इम्यूटेबल मीन्स कि ये इसमें जैसे हमने अगर S1 में हमने आपने दे दी हेलो, तो ये अब चेंज नहीं होगी। अगर आप S1 इक्वल टू दूसरा करते हैं तो वो एक रेफरेंस चेंज हो जाता है एक तरीके से, इंटरनली देखा जाए आप इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो इट सेकंड थिंग, इट कंटेन द स्ट्रिंग लिटरल्स इनसाइड द हीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Inside the heap, there is a fixed memory space called string constant pool। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक ऐसा मेमोरी सेक्शन है इनसाइड अ हीप, तो जहां हम स्ट्रिंग के लिटरल स्टोर करते हैं, लाइक सिंपल से थिंग। तो द स्ट्रिंग वेरिएबल होल्ड द रेफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रिंग लिटरल स्टोर इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ये जो एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, डिपेक्ट करा है मैंने स्ट्रिंग S1। हम एक दो स्ट्रिंग बना रहे हैं बेसिकली, हेलो, एंड S2 इज ऑल्सो हेलो, सेम कंटेंट। तो S1 होल्ड कर रहा है रेफरेंस, तो पॉइंट कर रहा है बेसिकली, ये ऑब्जेक्ट बना हेलो का इंटरनली। हमें न्यू की भी कीवर्ड्स में इंटरनली एक तरीके से न्यू को इंप्लीमेंट कर रहा होता है क्लास में जाके, आप जब इंटरनली पढ़ोगे डॉक्यूमेंटेशन। तो S1 होल्ड कर रहा है रेफरेंस हेलो, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है, यहाँ स्ट्रिंग लिटरल स्टोर हो रखे हैं। और S3 भी एक इसी को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ठीक है आपने सेम उसमें कंटेंट पास करा है, सेम उसमें रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। जब आप न्यू कीवर्ड करोगे इसके अंदर, स्ट्रिंग कांस्टेंट टूल है, तो जब इसको न्यू कीवर्ड करोगे तो इसमें एक अलग मेमोरी बन के वो बनेगी स्ट्रिंग। जैसे इसका इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, जैसे आपसे पूछ सकते हैं इफ एक कंडीशन लगाई, इफ स्टेटमेंट की, सिलेक्टिव स्टेटमेंट, और इनमें क्या करेंगे, आपका S1 इक्वल टू S2, इसमें क्या आंसर आएगा, लाइक ट्रू, या एल्स में क्या आएगा, लाइक पूछ लेंगे, लाइक फॉल्स आएगा, क्या आएगा आंसर। मतलब इसमें इसका आउटपुट पूछेंगे, मतलब बेसिकली आपका से आउटपुट डिपेक्ट करवाएंगे। तो S1 इज इक्वल्स टू लाइक डबल इक्वल्स टू, तो ये क्या करता है हमारा रेफरेंस चेकिंग के लिए होता है, रेफरेंस रेफरेंस चेकिंग, राइट। तो बेसिकली जब हमें बेसिकली लाइक ये हम रेफरेंस चेक कर रहे हैं, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को, लाइक S1 एंड S2, यहाँ पे हमारा ट्रू आएगा, ये इफ वाली कंडीशन चल जाएगी, बिकॉज ये सेम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है। ये मैंने आपको समझा दी। इस तरीके से बहुत इसके इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, इसमें बहुत ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन जाते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो उसको हम इन डेप्थ देखेंगे। तो यही यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है जो मैंने आपको समझाया था। सिंस स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, द सेकंड सेम स्ट्रिंग होल्ड द रेफरेंस टू सेम लिटरल स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट पोल, so both S1 and S2 hold a reference to the same single letter hello. This implies for normal strings, if we create the using new keyword, it will be stored in the normal heap object। like अगर हम इस तरीके से बनाते हैं स्ट्रिंग, तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलता है, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से स्ट्रिंग S3 इज इक्वल्स टू न्यू, न्यू कीवर्ड की वजह से, न्यू से क्या होता है, न्यू मेमोरी एलोकेट हो जाता है हमारा, न्यू कीवर्ड इतना खास है हमारा। ठीक है। तो हम किस क्लास का मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, स्ट्रिंग क्लास का, और इसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रिंग लिटरल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब इसके अंदर एक यहाँ पे एक छोटा सा S3 नाम की एक वो बन जाए, सॉरी, ये यहाँ पे बनी, यहाँ पे इसकी एक मेमोरी बन गई, आपको दिखा देता हूँ। ये एस सीरीज को पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे एक हेलो बन के हो गया होगा, ये अलग बनता है। ठीक है। न्यू कीवर्ड से अलग बनता है, इतना आपको पता रहना चाहिए। ये इसी टाइप की इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेंगे, जितना मैंने कवर कर दिया है आपको, ताकि हम स्ट्रिंग की जब वीडियो बनाएंगे डेडिकेटली, तो उसमें ज्यादा इन डेप्थ में देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली जब हम ऊपर प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो और डेप्थ में पढ़ेंगे। तो अभी आपको मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। इंटरफेस एक आपको प्रोवाइड करता है, हम जैसे इंटरफेस होता है ना अलग अलग यूआई इंटरफेस तरीके से, तो जैसे आप ये थोड़ा कोर्स में दे सकते हैं, पब्लिक इंटरफेस पर्सन,
और इसके अंदर हमारा है पब्लिक स्ट्रिंग प्रोफेशन। तो हमारा जो इंटरफेस होता है ये उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करनी होती है। तो 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हम इंटरफेस का हेल्प लेते हैं। और मल्टीपल इनहेरिटेंट डायमंड प्रॉब्लम का भी इससे हमारा सॉल्व होता है इंटरफेस से। तो पब्लिक स्ट्रिंग प्रोफेशन लाइक ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जो इंटरफेस में सारे मेथड होते हैं वो पब्लिक, फाइनल, स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं मेथड। ये आपको पता होना चाहिए। क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, फाइनल होते हैं और स्टैटिक होते हैं। ये आपको पता रहेगा तो सारे मेथड ये ऐसी उस टाइप के होते हैं, ठीक है। और तो आपको एक याद रहेगा, वैसे जब डेफ में पढ़ेंगे तो आपको उसका रीजन बता देंगे क्यों होते हैं ऐसे। तो एक पर्सन है इंटरफेस। तो ये जो पर्सन इंटरफेस है, अब वो टीचर है। तो टीचर भी से इम्प्लीमेंट, और टीचर भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। और जो है इंजीनियरिंग पर्सन है, ठीक है। तो ये अपनी अपनी इसके मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं। लाइक इम्प्लीमेंटेशन देना जरूरी होता है, मतलब थ्रू ओवरराइडिंग, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग ये भी हम आपको डेफ में पढ़ाएंगे। तो जब मेथड्स पढ़ेंगे तो ये टीचिंग अपना मेथड दे रहा है, ये दे रहा है, इस तरीके से कोर्स स्निपेट को समझिए थोड़ा बेसिक में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। जब हमारा ये दे रखा है, क्या जैसे अब ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पब्लिक क्लास हम स्टूडेंट एक क्लास बना रहे हैं, इसके अंदर एक मेन मेथड है और इसमें हम अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये पर्सन है, सब में आप देख रहे हो, ये एक पर्सन टाइप है। तो क्या है कि आपको एक चीज बता देता हूँ। पेरेंट कैन होल्ड द रेफरेंस ऑफ चाइल्ड। तो जो पेरेंट है आपका, चाइल्ड का रेफरेंस स्टोर कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके इंटायर जावा जर्नी में जब जावा लर्न करोगे तो आपको इम्पोर्टेंट आपका रहेगा, ठीक है। तो पर्सन एक आपका पेरेंट रेफरेंस, मतलब पेरेंट है, इसका नाम बना किसका ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड का ही बना रहे हैं। देखो ये इंजीनियर चाइल्ड का जो पेरेंट है उसका ही मतलब बना रहे हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बनना है, रेफरेंस हम कर रहे हैं उसी का। हमने एक रेफरेंस बना लिया और उसमें पेरेंट होल्ड कर सकता है किसका रेफरेंस, चाइल्ड का, ठीक है। तो वही चीज मैंने बता दी। सिमिलरली पेरेंट, टीचर, चाइल्ड, ठीक है। बन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट किसका रहा है, टीचर का ऑब्जेक्ट रहा है। ये किसका ऑब्जेक्ट बनना है, टीचर का ऑब्जेक्ट। वो भले ही पेरेंट को होल्ड कर सकता है, ठीक है। टीचर इसमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ये जब आप थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे तो आपको डेप में ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद जो वीडियो लगेगा सीरीज में मैं आपको दे दूंगा उसका वीडियो, ठीक है। इस तरीके से ये है ना, ये बना रहे हैं हम टीचर का ऑब्जेक्ट और टीचर का ही रेफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बतानी थी, पेरेंट कैन होल्ड द रेफरेंस ऑफ चाइल्ड। यही हम बना रहे थे। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक इसका वो है रेफरेंस वेरिएबल। टाइप क्या इसका, पर्सन, क्योंकि पर्सन होल्ड कर रहे थे, पेरेंट उसका जो है रेफरेंस, ठीक है, ही पे है ना। ये सब चीजें आप देख सकते हैं। तो वी हैव अ वेरी, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा नोट्स में, मैं ब्लॉग के फॉर्म में दे दूंगा आपको एस नोट पे, तो आपको पूरा डेडिकेटली पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। So here the variable software engineer and the teacher hold the reference of the engineer and teacher type object in the heap memory. So we can store the object of a child in a parent also. One, or we can store the object in the same like class itself, but we cannot store the create an object of interface. हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लाइक ये जो इंटरफेस था, आपको मैं दिखाऊं, ये जो इंटरफेस है, पर्सन इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते भाई, ये नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, राइट। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब क्यों नहीं बना सकते तो मैं आपको उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन जब उस प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। नेक्स्ट प्रिमिटिव, सॉरी नेक्स्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है एरे। तो एरे क्या है, आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे एक एरे एज अ क्लास भी है, कैपिटल फॉर्म में दे रहा है, तो ये एक एज अ क्लास भी है, यहाँ पे क्लास डेटा टाइप, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ मेमोरी स्टोरिंग सेम डेटा टाइप, ठीक है। तो ये हमने बनाया है कैरे को डिक्लेयर करने का तरीका, इंट ए आर आर न्यू इंट, हम इसमें कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हीप में इस तरीके से एरे जो रेफरेंस है, और ये देखो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रखी है, 0 1 2 3 4, मतलब 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो इसमें अलग अलग 10 हम इंडेक्स बेसिस से फेच कर सकते हैं वैल्यू, देख सकते हो आप, ठीक है। जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको हम उसमें डेप्थ में बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिक देख लीजिए। अब एरेस कैन बी असाइन इन मल्टीपल वेज, कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप लाइक 1D एरे, 2D एरे। जब हम डेप्थ में पढ़ेंगे एरेस के बारे में, जब फर्दर हम कभी डेटा स्ट्रक्चर की लाएंगे प्लेलिस्ट तो उसमें हम बताएंगे आपको, पर बेसिक ओवरव्यू जावा में जितना यूज होता है एरे उतना हम आपको करा देंगे प्रॉब्लम्स, राइट। नेक्स्ट इज non-primitive data type is like wrapper classes. This is very important for Java developer, or like if you're giving the interview or there, or your next interview is Java. This is very important concept और आपको पता होना चाहिए। इस पे तो क्वेश्चन मतलब एक आध दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं बेसिकली, राइट।
रैपर क्लासेस, ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, ये इसके अंदर दो हैं कॉन्सेप्ट, ये आप समझते हैं। तो जब हम पढ़ रहे थे लाइक फॉर ईच प्रिमिटिव डेटा टाइप, हमें पता है इतने टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। वी हैव कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंस टाइप देयर आर रैपर क्लासेस, हर एक प्रिमिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग एक रैपर होती है, रैपर क्लास होती है, ठीक है। तो इंट का इंटीजर आपको सबका कैपिटल कर देना, लाइक इंट, कैश, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, तो सबका एक उसके रेफरेंस में इंटीजर, कैरेक्टर, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, इस तरीके से आप देख सकते हैं रैपर क्लासेस हैं सारी। आप मेन बात है जब पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए भाई, वाई एंड व्हाट का तो पता ही होना चाहिए। तो वाई नीड फॉर रेफर क्लासेस, तो लाइक वी गेट द एडवांटेजेस ऑफ पासिंग बाय रेफरेंस, we get the advantage of passing the reference. For example, if we declare a wrapper type of int, that is integer type, अगर हम int type के primitive का हम wrapper रखते हैं like integer type, we can change it later on, it will change in the memory as we will as well as because of wrapper we are storing the reference, wrapper में हम store करते हैं क्लास के टाइप का है। in primitive we don't like, यहाँ पे अगर हमने प्रोवाइड कर दिया तो स्टैक में तो एक डेडिकेटली अपनी मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। जितना इंट लेता है 4 बाइट लाइक, ठीक। तो इसमें क्या कि हम एलोकेट डी एलोकेट कर सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल ज्यादा होता है इसमें अपना रैपर्स में, ठीक है। एक ही होता है कारण, दूसरा कारण ये होता है जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कलेक्शन वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तो दैट इज रेफरेंस डेटा टाइप्स। तो वी नीड रैपर क्लासेस टू यूज कलेक्शन, कलेक्शन फ्रेमवर्क का जब पढ़ेंगे लाइक एरेलेस, लाइक इस तरीके से और बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखनी होती इस वजह से, तो उसमें ये बहुत यूज होता है, बहुत लिटरली। ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग हम देखते हैं क्या होती है चीजें। तो ऑटो बॉक्सिंग एक फीचर है लाइक इसमें आपके रैपर क्लासेस में, टू कन्वर्ट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू इट्स रैपर ऑब्जेक्ट, जब रैपर ऑब्जेक्ट में आप कन्वर्ट कर रहे हो उसे, ठीक है, रैपर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे एग्जांपल है इंट, ये प्रिमिटिव है, अब इसको हम रैपर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो प्रिमिटिव टू रैपर, प्रिमिटिव टू रैपर, प्रिमिटिव टू रैपर क्या हुआ, ऑटो बॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग उसका उल्टा कर दो, एक याद रखिए उसका दूसरा उल्टा, ठीक है। टू कन्वर्ट अ रैपर क्लास टू प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टू रैपर ऑटो बॉक्सिंग, रैपर टू प्रिमिटिव अनबॉक्सिंग, ठीक है। ये रहा का एग्जांपल, बेसिक इतना सा एग्जांपल दे दो, आपका इंटरव्यू खुश हो जाएगा इंटरव्यूअर। अब कांस्टेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो ये आखिरी पार्ट है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू, जो मैंने पॉइंट्स बता रखे हैं, मैंने जो नोट्स बनाया, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट वेरिएबल दैट इज यूजुअली क्रिएटेड यूजिंग द फाइनल कीवर्ड, ये फाइनल कीवर्ड के थ्रू बनते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट बना रहे हैं ना, लाइक ये दे रखा है स्टैटिक, इट मींस स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, इट मींस ओनली वन कॉपी एग्जिस्ट, कॉमन कॉपी होती है, वन कॉमन कॉपी होती है पर्टिकुलर पर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो स्टैटिक से ये होता है, स्टैटिक क्या मतलब होता है, वो क्लास के थ्रू, क्लास से एसोसिएटेड है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया था, नहीं तो फर्दर एक मोर डेफिनेट वीडियो बना देंगे आगे। तो इट ओनली मींस वन कॉपी एग्जिस्ट, फाइनल मीन इट मीन वैल्यू वेयर कैन नॉट बी चेंज, मैं उसको चेंज कर ही नहीं सकते, एक बार असाइन हो गई तो ये मेमोरी सेक्शन में जाके असाइन हो जाएगी, आप चेंज नहीं कर सकते थे, आप करोगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये कब यूज हो सकता है, तो आपको डेट डिफाइन करनी हो, और भी तरीके होते हैं डेट डिफाइन करने के, बट एक मैं आपको एक थोड़ा इंट्यूशन दे रहा हूँ, डेट हो सकती है, और क्या कर सकते हो आप, किसी की एज कर सकते हो इससे डिफाइन, इंट से बेटर है आप फाइनल में एज दे दो, एज, ठीक है, एज दे सकते हो अगर आपको देनी है, और कोई कांस्टेंट आपको कोई देने हो, एनी कांस्टेंट टाइप, एनी कांस्टेंट टाइप को आपको अगर देना हो तो आप इससे के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, फाइनल के थ्रू भी आप कर सकते हो, किसी को आपको चेंज नहीं करना है, मतलब आप चाहते हो कि कोई चीज जो वेरिएबल है वो चेंज ना हो, तो आप फाइनल कीवर्ड का यूज करो, फाइनल कीवर्ड, ठीक है, ये इसको कांस्टेंट टाइप का बना देगा, ठीक है। और जनरली हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं बनाते वक्त, तो एक थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की, कोड रीडेबिलिटी, ठीक है। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बेसिकली मैं आपका कमेंट करूंगा, मैं अपनी इस कम्युनिटी पे भी बहुत काम कर रहा हूँ, और अगर आपको ये सारे नोट्स में सारे जितने भी वीडियो डले हैं उन सबके नोट्स मैं आपको किस पे प्रोवाइड कराऊंगा, आपको बता देता हूँ किस पे, हैश नोड पे। तो हैश नोड पे आर्टिकल्स पे काम चले, ब्लॉग की फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप रिवाइज कर सकते हो, सारी जितनी चीजें कोर्स स्निपेट सब कुछ उसमें मेंशन रहेंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी चीजें मेंशन रहेंगी, तो लाइक दैट। और अगर आपको कुछ और चीज चाहिए हो, जैसे कि
हम आपको बता देंगे कोर्स स्निपेट के अलावा, तो उसमें हम पेड सीरीज भी ला रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप एच नोट में आपको ब्लॉकी फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, सारे मैं आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा कंटेंट लाइक हो एंड लाइक ऑल ऑफ दैट। एंड अनदर थिंग, अगर आपको चीज कोई भी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक ऑल ऑफ दैट। एंड प्लीज मेक श्योर दैट लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल ऑफ दैट। थैंक यू।